The Honorable Speaker has disallowed those applications for adjournment notices. Hence, let us resume the business. Item number 2. Yeah, but the Honorable Speaker has disallowed all the adjournment motion notices. So, purpose to be laid on the table. Item number 2, Dr. Jitendra Singh ji. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Item number 3, Sri Jiten Prasad ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Item number 4, Dr. P. Chandrasekhar. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 5, Sri B.L. Verma ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से और लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। Item number 6, Sri Satish Chandra Dubey. Item number 6, Sri Satish Chandra Dubey. माननीय महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। Item number 7, Sri Bilplab Kumar Dev. Sir, I rise to lay on the table the Minister of the third. Our Minister for State is there. He is already there in the House. I rise to lay on the table on the minutes Hindi and English version of the third sitting. Next. The Committee of Absence members from the sitting. Item number 8, Sri Anurag Singh Thakur. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to present the 27th report, Hindi and English version of the Standing Committee of Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's revised list of business. Item number 9, Dr. Jitendra Singh ji. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to make the following statement on the floor of the House. The status of implementation of recommendations contained in the 409th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on demands of Grant 2026-27, demand number 89 pertaining to Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Item number The status 10. of implementation of recommendations contained in the 411th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on demands for Grant 26-27, demand number 24 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Thank you. Item number 10, Dr. L. Murugan. And permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 22nd report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on review of mechanism to curb fake news pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Item number 11, Sri Satish Chandra Dubey. आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर उल्लेखित खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 2026-27 के बारे में कोयला खान और इस्पात संबंधित अस्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विशिष्ट सिफारिशों के लिए कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 12, Srimati Nimmu Ben Jayanti Bhai Bhabaniya. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 12 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध विवरण जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित भारत में चीनी उद्योग एक समीक्षा के बारे में संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखते हूँ। धन्यवाद। Item number 13, Sri P.P. Chaudhary.
Chairman, sir, I wish to move देखिए माननीय सदस्य, that this house आप चर्चा नहीं करना to चाहते extend हैं? time for presentation. आप बैठिए। Sir, I read again because the speaker sir is here. अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते तो मैं सदन बंद कर दूंगा। Speaker sir, अगर आप I wish to move that this house to extend time for presentation of the report of the joint नहीं, committee on the constitution. ये तरीका ठीक नहीं है। 129th ये तरीका ठीक नहीं है। या तो आप सदन में चर्चा कर Union लीजिए। Territories Laws Amendment Bill 2024 up to the आप समझाइए अपने first सदस्यों, प्लीज day of बैठिए। last week of the बैठिए, बैठिए, प्लीज। session 2026. बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, आप उनके वकील मत बनो, वो खुद समझते हैं। चलो बैठिए आप, पहले आप बैठिए सब, बैठिए आप, प्लीज बैठिए। ना, ये तरीका ठीक नहीं, बैठिए प्लीज। किसको आना है, किसको नहीं आना, आप तय नहीं करोगे, आप तय करने वाले नहीं हो। जिन माननीय सदस्यों का, जिस माननीय मंत्री जी का विधेयक है वो यहाँ पर उपस्थित है, जिससे पार्लियामेंट नहीं चलती है। नो, Yes sir. Yes sir. देखिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। रात को 11 बजे तक सदन में चर्चा हुई, सभी माननीय सदस्यों ने अपने मत विचार किए। आप अगर आपके प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देना चाहते हो, आपकी योजना हो तो बता दीजिए, बता दीजिए। Yes sir. प्लीज, नो, प्लीज। और को लोगों को बोलने दें आप, प्लीज। डिबेट शुरू करने दें, डिबेट शुरू करो। आपने जो डिबेट शुरू करो, प्लीज, प्लीज। देखिए, Speaker sir, yes. Speaker sir, I wish to move that this house do extend time for the presentation of the report of the joint committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of the last week of the winter session 2026. प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब दिलेश्वर कामत जी हैं, एक मिनट रुकिए, पर एक ले लें। आइटम नंबर 14 नित्यानंद राय। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। चलिए, मनीष तिवारी के वाक काव्य, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। लोक परीक्षा प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें नियम 377 के तहत आज मामले उठाने की अनुमति दी है, वो व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, श्री दिलेश्वर कामत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विद्यार्थियों एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा स्थिति को मजबूत एवं गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाने के साथ तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों की अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सार्थक रूप से इस विधेयक को लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी राष्ट्रहित के सार्थक नीतियों से प्रेरित शैक्षणिक क्षेत्रों को
मजबूत बनाकर विकसित भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन कर भारत के भविष्य को संवारने का कार्य किया है। इस फैसले से देश के युवाओं को एनडीए सरकार के प्रति उम्मीद और दृढ़ विश्वास जागृत हुआ है। महोदय, मैं भारत के करोड़ों विद्यार्थियों के हित में उनके बड़े बड़े सपनों को साकार करने के लिए सदन में अपना पक्ष रख रहा हूँ। यह विधेयक भारत के गरीब, किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय करोड़ों परिवार के मेहनत का फल तथा युवाओं एवं बच्चों के भविष्य का सपना पूरा करने वाला विधेयक है। महोदय, पेपर लीक करने वाले पापियों का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र की तरह लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 लाया गया है। महोदय, नए संशोधन विधेयक में पेपर लीक या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को दंडित करने के लिए मुख्य आवश्यक बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें तय समय में जांच, तेजी से सुनवाई, कड़ी सजा और मजबूत सिस्टम बनाने का प्रावधान शामिल है। एक अहम प्रावधान के तहत राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे इस कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी सेशन जज को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर नामित कर सके। यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर इस कानून के तहत अपराधों की जांच के लिए एसटीएफ बनाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में पेपर लीक करने या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष कारावास एवं 10 लाख रुपए जुर्माना की जगह 5 से 10 वर्ष कारावास एवं 50 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है। सबसेक्शन 2 में परीक्षा आयोजित करने वाली बाहरी कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर्स की संलिप्तता होने पर 4 वर्ष कारावास एवं 1 करोड़ जुर्माना की जगह 8 वर्ष कारावास एवं 5 करोड़ रुपए जुर्माना है। सब सेक्शन 3 में 3 वर्ष कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना के जगह 5 वर्ष कारावास और 5 करोड़ जुर्माना।